So biphenyl compounds are optically active when they have proper substitution. Okay, so these biphenyl molecules are the molecules with two benzene ring are joined in this fashion. Okay, out of one ring is a planar and one ring is non-planar, and there are substitutions are there on that ring now. Example, these are the substituents now. Okay, example, I will have AB. This is what also AB now. Similar to that of biphenyl, there are bridged biphenyls are also with there now. What are the bridged biphenyl now? The bridged biphenyl are bridged. So bridged biphenyls are those compound where same chemistry is there, just like your biphenyl, but along with that, so there is an connectivity on other side. Example, this is my connectivity now. This is what CH2. This is the n number of CH2s are there, and here are the substituents now. Example A and B. Now what happened with this bridge now? So bridge makes the two rings are in a plane. This CH2 makes the two rings are in a plane now, and if these two rings are in a plane, then this compound is optically inactive. If the two rings are in a plane, then we can simply call it as it is an optically inactive compound because it has the planarity. In biphenyl, it is not like that. In biphenyl, one ring is in plane, or second ring is in outer plane, and this substituent show the chiral axis now. That means by exchange of that group, it will produce a different isomer. So biphenyl have chiral axis. Biphenyl is optically active because of what? Chiral axis now. But what happened when I join two benzene ring using that CH2 now? There are 2, 3, 4 CH2s are there. Okay, no issue at all. When these both the rings are in a plane, if both the rings are in a plane, then this compound is called as a optically inactive. Further, it depend upon the size of that CH2. If the size of CH2 is more, that is more number of CH2s are there, and AB are also on the bulkier now. It's totally depend upon the two things now. If AB are smaller, then it is optically inactive. But if AB are larger, if AB are bulkier, then they are maintain the stability by moving out of plane now. इसका मतलब क्या हो जाएगा? That means for bridged biphenyl, they showing the optical activity only when AB are bulkier. अगर A और B अगर bulkier हो जाएंगे, so they cannot be exist in a plane. क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा जब आपका AB स्मॉलर हो जाएगा तो. That's why when AB is a smaller, then they are present in a plane. Okay? और अगर वो दोनों प्लेन में प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों रिंग आपके प्लेन में प्रेजेंट है. That's why it is an optically inactive compound. So if AB are small, तो दोनों रिंग आपके कैसे हो जाएंगे? प्लेन में जाएंगे. But AB are large now. Example A and B are large in size. They are bulkier. So आपके रिंग्स कैसे हो जाएंगे? रिंग हो जाएंगे आपके आउट ऑफ प्लेन. And it show the optical activity. So in case of a bridged biphenyl, so there is a condition, that is it depend upon the size now. Okay. Now we have the compound. If we have the size of what CH2 is more, then obviously the compound is optically active. So let's look to the example of this molecule. Here, now that is more number of CH2s are there now. If n, this n, example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. If n up to that, this CH2, that is n value of CH2. Look at this example here. So here the n, that is CH2n. If n is a 1, then it is a very smaller ring. That means it is only 1, 2, 3, 4, 5 member ring is there. अगर हम n की वैल्यू वहां पे 1 रखते हैं, if you are putting the value of n is equal to 1, so then it is a very small ring now. If you take the n is equal to 2 now, that means with increase in the number of what n value, the optical activity what also increases now. So if n is greater, then आपका a और b को ज्यादा वो नहीं होता. That means whatever a और b is there, so your compound is optically active now.
So remember, there are various types of structures are there possible. Example, यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? So I will give you the detail about the n is equal to 1. आपको ये वाला मिलेगा. If n is equal to 1 मतलब ये हो गया CH2 1. अगर आप इसमें n is equal to 2 यूज करते हैं तो what happen now? If n is equal to 2 तो ये आपका ऐसे बनेगा. और जैसे जैसे आपका n का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आती रहेगी. दैट मीन्स ओनली फॉर n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने होते हैं कि a एंड b शुड बी बल्कियर, should be what? Bulkier. Then and then this compound is what? Optically active, neither not. While for those compound having n is equal to n is greater than 2 now, जैसे फिनांथ्रीन वगैरह एग्जांपल आप ले सकते हैं या उससे भी ज्यादा आप नंबर ऑफ CH2 वहां पे ले सकते हैं. So when n is greater than 2, irrespective of the size of what a and b now, these are out of plane and so basically ring out of plane नहीं जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल आपका प्लेन है, बट जो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके जो प्रेजेंट होंगे ना, so they what? In outer plane now, and that's why they show the kind of what optical activity. So for bridged biphenyl there are two conditions are there. One is it depend upon the size of A and B, and it depend upon the number of your atoms or number of n value particularly, and such kind of the compound show the optical activity is depend upon the substituent and the size of ring. In generally, if the bulkier substituents are there, example COH NO2, then they are in outer plane, so compound is optically active. और अगर छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होते जैसे हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप, they are in a plane, that's why optically inactive. So just have to consider these 2 points for the chiral. Example, you will look at this one now. If ring is more than, that is n value is more than 2, then irrespective of what substituents now, it is optically active compound. अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2 से ज्यादा होगी. And these are the suppose example my substituent methyl group is there and this is also what methyl. यहाँ पे आप वो नहीं देखते इसको because यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 3. So this compound is optically active. जहाँ पे n से ज्यादा हो गया, n इज ग्रेटर देन 2 हो गया तो सारे कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं. सिर्फ n की वैल्यू 2 से कम है तब आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है. सो जस्ट कीप इन माइंड दिस 2 पॉइंट्स. अभी तक हमने जो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं जिसमें कायरल सेंटर, जो कायरल सेंटर होगा या कायरल किसी में एक्सिस होगा, तो अभी हमको पढ़ना है कि जो कायरलिटी नाम की जो कंसेप्ट है ये आता कहां से. सो बेसिकली वी आर डिस्कस अबाउट द कायरल एलिमेंट. व्हाट आर द कायरल एलिमेंट्स नाउ? सो कायरल एलिमेंट्स मतलब जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से उसको हम असिमेट्रिक बोल रहे हैं. सो दैट फेनोमेना इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए कायरल एलिमेंट ना, या फिर द एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. किसके लिए? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. मतलब ये वाला. अब जैसे आपने लैक्टिक एसिड पढ़ा इसके पहले, सो लुक एट दिस लैक्टिक एसिड नाउ. एग्जांपल, दिस इज माय लैक्टिक एसिड. तो अब लैक्टिक एसिड कायरल है या ऑप्टिकल एक्टिव है? वो किसकी वजह से है? वो बिकॉज ऑफ कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है. तो हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं. सो दैट एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए कायरल एलिमेंट्स नाउ. एंड दीज एलिमेंट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल द कायरल सेंटर. एक पहले क्या रहेगा तुम्हारा जो हमने अभी तक देखा है, कायरल सेंटर. Chiral center makes the molecule asymmetric and that will rotate the light, that is plane polarized light, toward right or left. So based on that we are going to call as optically active. Second आपका जो है chiral axis. Chiral axis कौन होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जैसे एग्जांपल हमने लिया है, बाइफेनिल लिया है, स्पाइरो कंपाउंड लिया है, उन सब में आपका ये एक्सिस प्रेजेंट रहेगा एंड दैट एक्सिस इज रिस्पांसिबल फॉर द
optical activity. That is called the chiral axis now. Similar to that of what? We have chiral plane are there now. Chiral plane. Now what are the chiral planes now? That also possible to show the optical activity now. This also the chiral, this is also the chiral element now. And last one, that one is called as a helicity now. Helicity. You know about the DNA, right? Helical structure. The term helicity is first used in DNA now. That is type of orientation. Example, this is suppose example somebody is drawn the DNA structure now like this. ठीक है, तो ये इसका जो ओरिएंटेशन है किस तरह से घूमता है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं इसको. सो फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट नाउ, फ्रॉम वेयर, यहाँ से इसका रोटेशन कैसा है, ये ऐसा है कि ऐसा है, उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिसिटी. उसी तरह से हेलिसिटी भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होती है, वी हैव टू एक्सप्लेन. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट chiral एलिमेंट्स ना, जिसकी वजह से कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है. एक है सेंटर, दूसरा chiral एक्सिस, तीसरा chiral प्लेन, और चौथा है आपका हेलिसिटी. ठीक है, chiral सेंटर तो हमने पढ़े हैं. ठीक है, chiral एक्सिस मतलब आपका जैसे बाइफिनिल स्पाइरो कंपाउंड और भी कई सारे एग्जांपल जो थे अपन लिए हैं वो वाले. अभी हमको पढ़ने chiral प्लेन क्या होता है, व्हाट आर द नाउ द chiral प्लेन्स किसको बोला जाता है. सिंपल प्लेन से ये कैसे अलग अलग होता है. प्लेन मतलब समझ में आना चाहिए. प्लेन मतलब क्या होता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज देयर, व्हेन आई पास इमेजिनरी प्लेन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को एक इमेजिनरी प्लेन पास कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आपका इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया. से एग्जांपल वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. मैं इसको नंबर देता हूँ हाइड्रोजन को, और मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन पास किया है कि जिस प्लेन की वजह से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया. अब ये प्लेन कहाँ से पास हुआ, दैट प्लेन इज पासिंग थ्रू द ऑक्सीजन एंड that cuts the molecule into 2 equal half. Now that type of the plane is going to be called as and that phenomena is going to be called as a reflection. Now क्या बोलना है इसको, रिफ्लेक्शन. तब ऐसे कई सारे प्लेन्स होते हैं. एक होता है अगर आप वर्टिकली पास कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन जो है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है. सिमेट्री में हमने इसको कभी पढ़ा होगा. सो इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री इसको अगर लिखेंगे अपन तो एक होता है वर्टिकल प्लेन जो मॉलिक्यूल को वर्टिकली कट कर रहा है, एक होता है हॉरिजेंटली मतलब जो मॉलिक्यूल प्लेनर होते हैं उनमें ये वाला प्लेन होता है, और एक होता है आपका डायहेड्रल. ऐसे 3 टाइप्स के अलग अलग क्या प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है. बट ये कायरल का मतलब क्या है, कायरल कहाँ पे होता है, ये कॉमन मॉलिक्यूल्स में तो नहीं होता. दैट कायरल प्लेन विच एग्जिस्ट इन ओनली साइक्लोपेन्स नाउ, दैट कंपाउंड्स विच शो साइक्लोपेन. अब साइक्लोपेन मतलब कौन से टाइप की कंपाउंड है ये. दूसरा कंपाउंड होता है अंसा कंपाउंड. इन अंसा कंपाउंड आल्सो इन अंसा कंपाउंड आल्सो व्हाट द कायरल प्लेन देयर ना. और एक होता है साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन. ऐसे 3 अलग अलग एग्जांपल आपके पास जिनमें ये वाली केमिस्ट्री प्रेजेंट है. अब कायरल प्लेन मतलब, सो आई विल फर्स्ट राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेन. नाउ साइक्लोपेन का मतलब कुछ नहीं, देखो जैसे एग्जांपल मेरे पास एक बेंजीन रिंग था और बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे 2 CH2 लगे हुए, राइट, एंड दैट CH2 इज गोइंग टू मेक अ प्लेन और मेक अ कनेक्शन विद दी दैट CH, मतलब दोनों CH2 अभी ज्वाइन करने हैं. व्हाई आर द नंबर ऑफ डिफरेंट CH2 नाउ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, अलग अलग CH2 लेके मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया. तो ये वाला जो कंपाउंड है इनको बोलते हैं साइक्लोपेन. साइक्लोपेन्स नाउ CH2 कितने भी हो सकते हैं. और ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन कब दिखाएगा इट्स डिपेंड ऑन ये कंपाउंड. सब के सब देखो, अब ये क्या होता है कि जैसे ये सब CH2 लगे सो दैट कंपाउंड मेक्स द प्लेनर, और प्लेनर आ गया मतलब सिग्मा एच प्रेजेंट हो गया, और सिग्मा एच प्रेजेंट आ गया मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. मतलब ये कंपाउंड किसकी वजह से इनएक्टिव हो गया, बिकॉज ऑफ इन प्लेनर, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. क्योंकि आप मॉलिक्यूल को ऐसे भी कट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको हम हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हैं. और हमारे पास तो मेन चीज यही है कि कंपाउंड प्लेनर नहीं होना चाहिए. असिमेट्रिक कंपाउंड शो ओनली ऑप्टिकल एक्टिविटी. फिर मैं इस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बनाऊंगा कैसे, हाउ आई कैन मेक दैट मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव. और अंसा मतलब क्या होता है, अंसा में इस CH2 जगह वो आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अंसा कंपाउंड. वेरी सिंपल. ओके, अब क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि इस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बनाएंगे कैसे. नाउ अगर हमने इसको नॉन प्लेनर लिखा, बट नॉन प्लेनर लिखेंगे कैसे, वो CH2 तो उसको रिस्पॉन्सिबल है
that CH2 are responsible to make the structure planar. फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, if you want to show the planarity on the molecule, then I am going to substitute. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा, ये वैसे के वैसा रहेगा सब, ये सब जैसे के वैसा है, कुछ चेंज नहीं हुआ. Now here, if you want to make it a non-planar, then I will just put a substituent on here, which should be a bulk here. Now due to that reason, this ring becomes a this becomes a what? Non-planar. And it loses the plane of symmetry because just the BR now. So this compound is a non-planar, and if it is non-planar, then it is going to be called as a optically active. Simple ANSA compound, simple आप compound लोगे तो होगा नहीं, ठीक है. So we have to what, make the substituent larger, and then it show the kind of what activity now. तो आप एक दो सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे यूज कर सकते हैं. इफ एग्जांपल किसी ने यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है आपके पास, और भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो लुक एट द वन मोर एग्जांपल फॉर दिस कंपाउंड CH2, okay, and here I am going to connect that 2CH2 via this one. Example, here is my 1Br. तो ये इसका मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है जिसको रेड से दिखाया, ये फ्रंट में आ गया. तो जब आप बैक में कोई सब्स्टिट्यूएंट डालोगे तो ये ऐसे हो जाएगा. सो दैट मींस दिस रिंग इज अ नॉन प्लेनर. Br या फिर Cl, कोई भी Br Cl आप वहां पे यूज कर सकते. तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो या दो सब्स्टिट्यूएंट हो, दिस कंपाउंड इज व्हाट, नॉन प्लेनर. सो इट गोइंग टू शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी. That means their compound is a out of plane, so it show the optical activity. So simple cyclopanes are optically inactive, but when we have the substituent, proper substituents, then it should be show the optical activity. Now next compound is ANSA compound. So what are these ANSA compound and how they show the optical activity now? ANSA means जो cyclopane है आपका, उसका C आपको रिप्लेस करना है, just रिप्लेसमेंट ऑफ C by O. ठीक है, फिर C से अगर रिप्लेस कर लिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, now here will be my oxygen. ठीक है, और यहां से आपका CH2 ऐसे हो जाएगा. Okay, so due to what, just a replacement of carbon by oxygen now. So here also the same condition, all the molecules have whatever the system is given, they are all planar. So अगर ये planar रहेगा, so this is what, inactive. But if you make a proper substituent on that, it will going to show the optical activity now. Yes, so this is what, non-planar. And here compound is going to be called as a optically active. So likewise इसको हम कर सकते हैं, और इसको आपको नॉमेनक्लेचर भी करते आना चाहिए. So just we have to give the, अब कायरल सेंटर आपको इस साइड से दिख रहा है ना, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है एक्चुअली वो, बट दिस मॉलिक्यूल इज बिलोंग्स टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि उसमें कोई ना कोई कायरल एलिमेंट प्रेजेंट है. सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर नाउ. सो अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं, सो किस तरह से नंबरिंग जाएगा आपका. सो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन से आपको लेना होता है यहाँ पे. और इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, ये वाले, इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, तो ये कंपाउंड आपका पूरा का पूरा उसका क्या हो जाएगा, इट शो द लाइक दिस वन. इसका मिरर इमेज आपको बनाना है, और दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, RS nomenclature. CH2, this is CH2 n time, this is what O, and here also what the CH2. Similarly, what here will be my Br. Okay, so what we have to do now. So generally for this ANSA compound we have to first higher priority जो जाती है वो सबसे पहले जाएगी ऑक्सीजन को, जो आपकी ब्रोमीन के बाजू में दिया गया है. So higher priority goes to what, oxygen. Next priority जो रहेगी आपकी, it going to the carbon like this, and third priority is going to here. Similarly
first priority going to oxygen, second priority going to here, and third priority is going to here now. So if you see this molecule, अगर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है तो एक अगर R आएगा तो दूसरा must be S. So the first priority should be given to what oxygen, because what we are going to consider here from here. So 1 2 3 अगर हम जाते हैं, so it is what showing clockwise direction, while this one showing anti-clockwise direction. So again, what in ANSA compound, the optical activity is due to chiral plane. So in this molecule, what a proper substitution is required. Okay, and based on that, we are going to say the ANSA compounds are optically active or not. So the condition for this ANSA compound as well as the cyclopanes are the proper substituents now. So they should be a bulkier, they should be a larger in size. That makes the molecule is a non-planar. Similar to that of what we have, cyclooctanes are there now. अब cyclooctane कौन है ये? Cyclooctane. ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं. साइक्लोऑक्टेन का मतलब हो गया आपका कि आपके पास एक 8 मेंबर रिंग मॉलिक्यूल है, and in which somewhere what the double bond is there. This is called cyclooctane. So let's give the numbers to that cyclooctane. So 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. This is the 8 member ring molecule, and this molecule shows the structure like this one. इसको अपन convert कर सकते हैं in proper orientation example. Suppose this is my carbon carbon double bond. तो ये molecule किस तरह से जाएगा आपका? It will be like this. Yes. So this is what the arrangement of that molecule in like this fashion. तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है. This is 3 4 5 6 7 and 8 now. Again, this molecule is a planar, but the proper substitution on that 7 and 4 position, that will lead to what the optical activity. So cyclooctane is also responsible for showing the optical activity. That means in chiral plane, we have 3 example. Out of that, cyclopane is considered as a very important one. Then we have ANSA compound. In दोनों का भी यही है कि we have to proper substitution should be there now with respect to that the ring size. So this is what your compound that is called the chiral plane containing system now. The important one, last one, that is called helical structures now. That is we are called as helicity. So helicity जो है ये टर्म कहाँ पे यूज की गई थी? जो स्पाइरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, स्पाइरल बाइंडिंग जिसमें होती है, ठीक है, यू नो दैट स्पाइरल बाइंडिंग का वर्ड तो हम कई बार सुनते हैं इसमें. सो जहाँ पे स्पाइरल बाइंडिंग होती है, सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए helical structure now. So those molecules have spiral bonding arrangement. अब यहाँ पे एग्जांपल आपके पास एक कॉमन एग्जांपल जो है वो आपका डीएनए रहेगा, ठीक है. अब हेलिकल स्ट्रक्चर में हम कैसे लिखते हैं कि एग्जांपल एक कोई स्प्रिंग या कोई आपके पास हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर आपके पास, तो आपकी रिंग कैसे स्टार्ट होती है? एग्जांपल अगर ये वाली रिंग आपके पास प्रेजेंट है, तो अब इसका जो रिंग का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे जा रहा है, वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. और वही रिंग अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूँ तो ये कैसे जा रहा है, कैसे समझ में आएगा ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? तो पहले इसको देखना होता है कि रिंग आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है. इसका मतलब ये जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, ठीक है. और ये वाली जो रिंग है आपकी, ये कैसे जा रही है? इट इज गोइंग लाइक दिस फैशन. तो बेस्ड ऑन दैट हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. ये जो स्पाइरल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है. और ये जो रहेगा आपका, दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. अब यहाँ पे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन है, ना यहाँ पे कायरल प्लेन का क्वेश्चन है. कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट ना हो, सो नो नीड टू व्हाट सब्स्टिट्यूएंट, नो नीड टू एनी काइंड ऑफ व्हाट सिमेट्री. यहाँ पे कोई सिमेट्री है ही नहीं. इसका मतलब ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ हेलिसिटीज ना, बिकॉज ऑफ द हेलिसिटी दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव. क्योंकि ये कंपाउंड खुद ही क्या है, क्या है इसके अंदर, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव. these molecules are always optically active. Now why they are optically active now? Because
देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कोई प्लेन में नहीं आएगा आपका, सो क्योंकि ऑलरेडी वो कौन है, दिस कंपाउंड्स आर नॉन प्लेनर, so no issue of what any kind of what symmetry, no requirement of any substituents, ठीक है. So it's just because of what the helical helicity now, and they are what optically active, they are what optically active. So these are the key points of helicity now you know that for helicity which examples are going to be included now, कुछ examples हमको consider करने होते. in this particularly helical structure में जो है हम example जो है वो we are going to take the examples of a larger aromatic systems like this one, जिसको हेलिसीन कहा जाता है. So here so look at this compound now here. अब इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो बताई जाती है वो यहाँ होती है, यहाँ पे ये सिर्फ ये वाले का ये वाले रिंग, ठीक है. और ऐसे दो कोई कंपाउंड लिए हमने, चलिए. अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल है आपका और आपको जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो मेंशन की गई है वो कैसे है. सो लुक एट दिस वन एग्जांपल, ये वाला आपको बहुत थिक लाइन में दिया है और ये वाला जो है आपको डॉटेड लाइन में दिया है. इसका मतलब क्या होता है कि जहां से आपका जो थिक ओरिएंटेशन है यानी कि जो अबो द प्लेन है, एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, वहां से आपको रोटेशन कंसीडर करना होता है किसकी तरफ, दैट मींस वी हैव टू शो द रोटेशन लाइक दिस वन, this will going to be the rotation now, that means this ring will be the like this fashion from what the thicker line toward the dotted line, या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं these are dark line, ये कौन सी लाइन है, ये डार्क लाइन, और ये वाली कौन सी होगी, ब्रोकन लाइन. सो कहां से कहां जाना होता है आपको, डार्क लाइन से आपको जाना होता है ब्रोकन की तरफ, फिर चाहे वो किधर भी हो. सपोज मान लेते हैं कि आपका अब यहाँ पे ये कहां पे, ये दोनों सेम कंपाउंड है, बोथ आर व्हाट सेम कंपाउंड्स, बोथ आर फॉर द सेम कंपाउंड्स. बट क्वेश्चन क्या है आपका, जो डार्क लाइन है आपकी वो कहाँ पे राइट साइड में है और ब्रोकन कहाँ पे आपकी लेफ्ट में. सो राइट टू लेफ्ट ये किस तरह का ओरिएंटेशन हो गया, सो इट इज अ क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन. क्लॉकवाइज, कैसा हो गया ये, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है. क्लॉकवाइज. तो जो कंपाउंड ये वाली फेनोमेना ये वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो उनको जनरली अपन हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिसिटी में उसको कंसिडर अपन करते हैं. एंड दीज कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव. और इसकी दो सिंपल नॉमेनक्लेचर है. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हमने क्या बताया था इसको, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है आपका ये वाला रिंग में, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जा रहा है आपका, तो ये दो हो गया आपकी रोटेशन, प्रॉपर रोटेशन, ठीक है. तो जो मॉलिक्यूल पहले वाला रोटेशन फॉलो करता है, ठीक है, सो दैट विल गोइंग टू कॉल्ड एज ए, द साइन इज गिवन दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज. तो पहले ये हो रहा है तो पहले अपन इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे. ये वाला क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन का मतलब होता है जैसे हम उधर आर एस देते हैं यहाँ पे वैसे नॉमेनक्लेचर दैट इज कॉल्ड P and M nomenclature. So this is P and this will be going to be M now. What is P and M now? So P means what the plus, that is what the positive, या इसको अपन प्लस भी बोल सकते हैं. और M माने होता है नेगेटिव, okay, that is called as a minus. Okay, so based on that we are just give the sign whether it is a positive or whether it is a negative. So आप कहीं पे भी ये वाले दो nomenclature आप अप्लाई कर सकते हैं and these two nomenclatures are applied to helical compounds. ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट को कुछ है नहीं. ये कंपाउंड में ना सिमेट्री देखनी है आपको ना कुछ देखना है, बस ये दो चीजें आपको अप्लाई करनी है एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. सो मान लेते हैं मैंने फिनांथ्रीन निकाला. फिनांथ्रीन मतलब होता है थ्री मेंबर रिंग, थ्री रिंग्स आर इन अ एंगुलर फैशन. ये हो गया फिनांथ्रीन. और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ऐसे है, ठीक है. ये क्या है, इसके सब्स्टिट्यूएंट्स. मान लेते हैं मैं इसका मिरर इमेज निकाल लेता हूँ सामने, क्या हो जाएगा ये, हो गया.
अब करना क्या है तुमको, क्या बोला था हमने इसमें, वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम थिक टू, जो ऐसे जा रहा है, सो इट इज मस्ट बी अ प्लस and this is what the minus, that is what the negative. So nomenclature for these compounds are E and these compounds are what? So this is about the molecules without chiral center now. कुछ ऐसे molecule जिसमें chiral center नहीं है. So most what first of all what we have to proceed on to the different molecules, okay, from this category, okay. तो देखो इस तरह से जो है आपका जो लास्ट पार्ट जो था आपका, so this is what the chiral plane now, या chiral element जिसको अपन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है. अब इसमें एक एडवांस पोर्शन जो रहा वो असिमेट्रिक सिंथेसिस का रहा, असिमेट्रिक सिंथेसिस. असिमेट्रिक सिंथेसिस मतलब वो वाली रिएक्शन जिस रिएक्शन में हमको, सपोज एग्जांपल these are my reactants, R are my reactants now, and that will give the products P1 plus P2. ऐसी रिएक्शन जिसमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलने चाहिए. कैसे? द रिएक्शन दैट विल गिव राइज टू द अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट. मान लेते हैं दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अ मेजर एंड माइनर. ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको क्या मिलता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलते हैं. फिर मेजर माइनर का मतलब क्या हो गया कि 50-50% नहीं, 60-40, 70-30, 75-25, 80-20, 90-10 हो गया, 99-1 हो गया. तो ऐसे रिएक्शन जो है जनरली सिलेक्टिव रिएक्शन बोले जाते हैं. व्हाट आर द सिलेक्टिव रिएक्शन? सिलेक्टिव रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि कोई रिएक्शन ऐसी जिसमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ आपको क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, unequal amount of product. That reaction is going to be called as a selective reaction. Unequal amount of product. तो जिसका रेशियो जो है वो मेजर माइनर तो मिलेगा आपको, बट लेकिन अनइक्वल अमाउंट में रहेगा. तो इसको अपन सेलेक्टिव बोल रहे हैं, असिमेट्रिक नहीं. असिमेट्रिक सिंथेसिस वो रिएक्शन होती है जिसमें हम नया chiral center डेवलप करते हैं. रिएक्शन वेयर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू chiral center, दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए असिमेट्रिक सिंथेसिस. फिर कई सारे एग्जांपल्स आपके पास है जो असिमेट्रिक सिंथेसिस में जाते हैं. Okay, we have various reactions are there. Suppose example, you want to prepare cyclohexanone to this one. अब ये रिएक्शन वैसे दिखती तो नहीं है, बट एक्चुअली दिस रिएक्शन इज व्हाट इन असिमेट्रिक सिंथेसिस. एग्जांपल साइक्लोहेक्सानोन से मैंने ये बना दिया. अब ये रिएक्शन जाएगी आपकी असिमेट्रिक सिंथेसिस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ न्यू chiral center. So there are various examples are there that includes the asymmetric synthesis. So इसको भी अपन थोड़ा देखेंगे. We'll discuss that asymmetric synthesis. Okay. सो असिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए आपको कंडीशंस क्या क्या है यहाँ पे कि आपको रिएक्शंस में जो क्या क्या होता है आपकी रिएक्शन में पार्ट, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है रिएजेंट, ठीक है, एक होता है कैटलिस्ट, और एक होता है एक्सिलरी या जिसको अपन एनहांसर वगैरह वगैरह बोलते हैं. तो आपका प्रोडक्ट कायरल रहेगा, प्रोडक्ट में आपका नया कायरल सेंटर बनेगा. प्रोडक्ट हैव द कायरल सेंटर ओनली व्हेन, जब आपके पास इन तीनों में से कोई एक कायरल होना चाहिए, आइदर कैटलिस्ट, आइदर रिएजेंट और आइदर रिएक्टेंट. इन तीनों में से अगर कोई कायरल होगा तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो कायरल मॉलिक्यूल बनेगा. and that is going to be form the asymmetric, or that is going to be considered as a asymmetric synthesis. तो एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन पार्ट जो है अपन उसको अपन asymmetric synthesis बोलते हैं. अब आपके पास कुछ रिएक्शंस है जिसमें asymmetric synthesis आता है, जैसे एग्जांपल शार्पलेस इपॉक्सीडेशन. शार्पलेस epoxidation, it is belong to the asymmetric synthesis. Even the next important reaction that is called Stark-enamine. Stark-enamine reaction. So these are two important reaction which are going to consider into the asymmetric synthesis now. तो ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा था ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये Stark-enamine में जाता. तो इसमें ये डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जो है अबव द प्लेन आ गया, इसका मतलब हमने नया chiral center वहां पे बनाया. So how we are going to introduce that chiral center now, that here now with the alpha position. तो ये इसके लिए आपको asymmetric synthesis देखना होता है.